Assalamu alaikum. My name is Jasra Tahir, and today we are going to learn about our next measuring instrument, that is screw gauge. So, it is an instrument that is used to measure small length with accuracy greater than vernier caliper, or it is a device that is used to measure a fraction of a smallest division on scale by rotating circular scale over it. मतलब ये जो हमारे पास इंस्ट्रूमेंट है ये ज्यादा रिफाइंड है, एक्यूरेट है, प्रिसाइज रीडिंग देता है हमें वर्नियर कैलिपर की निस्बत. Let's come towards the construction of screw gauge. So it is having a U-shaped metal frame at its one end, and a stud is attached with it. Okay, so a hollow cylinder or sleeve having a millimeter scale over it along a line called the index line that is parallel to axis. This is basically the index line, or you can say it is a baseline, and it is the main scale of the screw gauge as well. Next, hollow cylinder is also acting as a nut which is fixed at the end of U-shaped metal frame opposite to the stud. Here is the nut in front of you, and it is opposite to the stud attached with the U-shaped metal frame. Coming towards the next, thimble having a threaded spindle inside it. This is the thimble of the screw gauge, and it is having the circular scale over it. The next is a lock and a ratchet. This is the ratchet. इसके थ्रू आप इसको रोटेट करते हो, और जब आपने इसके अंदर जो भी आपने ऑब्जेक्ट प्लेस करते हो, आप जब इसको और ज्यादा रोटेट करते हो तो बेसिकली आपकी जो ऑब्जेक्ट है वो क्लोज हो जाता है, लॉक लग जाता है उसको. Going forward, pitch of screw gauge. Distance traveled by the circular scale on linear scale or main scale in one rotation. Okay, so what is it? जो आपके हम जो स्क्रू गेज है इसको जब हम रोटेट करते हैं तो बेसिकली जो डिस्टेंस वो ट्रेवल कर रही होती है एक रोटेशन में, ठीक है, दैट इज द पिच ऑफ स्क्रू गेज. यहाँ से इंडेक्स लाइन से जो हमारे पास जितनी रोटेशन आई होती है दैट इज द पिच. और वो पिच होती क्या है? बेसिकली 1 millimeter is the pitch. As the thimble complete one rotation, the spindle moves 1 millimeter along the index line as the distance between two consecutive threads is 1 millimeter. मैंने आपको अभी समझाया है. Coming towards the least count of screw gauge, the minimum length which can be accurately measured by a screw gauge is called the least count of the screw gauge. जो सबसे छोटी रीडिंग हम ले सकते हैं स्क्रू गेज से, that is called basically the least count. तो लीस्ट काउंट का हमारे पास फॉर्मूला क्या है? पिच ऑफ स्क्रू गेज डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ डिविजन्स ऑन सर्कुलर स्केल. पिच के बारे में हम ये डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है. अभी वेरी कर रही होती है, आपके लेबोरेटरी के अंदर जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं वो डिफरेंट होते हैं, किसी के अंदर डिविजन ज्यादा होती है, किसी के अंदर कम होती है. सो इट इज डिपेंडिंग अपॉन द इंस्ट्रूमेंट दैट यू आर हैविंग इन योर लेबोरेटरीज. अगर हमारे पास पिच 1 मिलीमीटर है तो ऑफकोर्स उसकी डिविजन्स ज्यादा है, 100 है उसकी डिविजन. तो डिवाइडिंग दैट इज 0.01 मिलीमीटर, और सेंटीमीटर में अगर इसको कन्वर्ट करते हैं तो 0.01 सेंटीमीटर. और अगर हमारे पास जो पिच है स्क्रू गेज की वो 0.5 मिलीमीटर है तो हमारे पास जो डिवीजन होती है सर्कुलर स्केल की वो हमारे पास 50 होती है, ठीक है. 100 भी होती है और 50 भी होती है, लेकिन फिर वो पिच जो होती है ना वो थोड़ी सी वेरी करती है. और उसका लीस्ट काउंट दैट वुड बी सेम, दैट इज 0.01 millimeter. So the least count of screw gauge is the same, 0.01 millimeter. Going forward, we are having the zero error of the screw gauge if zero of the circular scale is above or below the zero of the main scale. Then it is called as the zero error in a screw gauge. हमने वर्नियर कैलिपर की बात की थी तो हमने कहा था कि कंसाइड कर रहे हो जो जीरोस हैं दोनों वर्नियर स्केल और मेन स्केल के, तब जीरो एरर नहीं होता. और सेम इज द केस, मगर उसमें हम लेफ्ट और राइट मूव करते थे, इसमें हमने फॉरवर्ड और बैकवर्ड, या ऊपर जाना है या नीचे जाना है. सो देयर आर टाइप्स of zero error in screw gauge as well. The number one we are having is positive zero error. If the zero of circular scale is behind the index line, then the zero error is positive. जो हमारी, अब हम डायग्राम की तरफ आते हैं. If the zero of circular scale is behind the index line, this is the circular scale we are having and this is the index line of the screw gauge. अब अगर तो वो पीछे है, ठीक है, जीरो इंडेक्स लाइन के जीरो से पीछे जा रही है हमारे जीरो, तो जीरो एरर हमारे पास पॉजिटिव होगा.
कमिंग टू वर्ड्स इट्स करेक्शन, अब इसको हमने ठीक तो करना है ना, हम पता चल गया जी पॉजिटिव जीरो एरर है हमारे पास, तो करना क्या है आपने कि मल्टीप्लाई द नंबर ऑफ डिवीजन ऑफ सर्कुलर स्केल दैट हैज क्रॉस द इंडेक्स लाइन विद द लीस्ट काउंट ऑफ स्क्रू गेज। अब डिविजन्स आपने टोटल नंबर ऑफ डिविजन्स पे डिपेंड करते हैं कि आपकी 100 हैं तो 50 हैं, तो आपकी जितनी लाइंस जो हैं वो क्रॉस हो चुकी हैं, डिविजन्स क्रॉस हो चुकी हैं, ठीक है, इंडेक्स लाइन से, वो आपने लीस्ट काउंट से मल्टीप्लाई कर देनी है स्क्रू गेज की, तो आपका जीरो एरर जो है वो कंप्लीट इस तरह से ही हो जाएगा। कमिंग टूवर्ड्स द नेगेटिव जीरो एरर of the screw gauge, if the zero of circular scale has crossed the index line of the screw gauge, then the zero error will be negative। अगर तो हमारा जीरो, ये हमारे पास सर्कुलर स्केल है अगेन एंड दिस इज द इंडेक्स लाइन ऑफ द स्क्रू गेज, अगर तो ये ऊपर चला गया, ठीक है, फॉरवर्ड चला गया इंडेक्स लाइन से, तो आपका जीरो एरर नेगेटिव है, दैट इज कंसिडर्ड एज द नेगेटिव जीरो एरर। और इसकी करेक्शन क्या है, मल्टीप्लाई द नंबर ऑफ डिविजन्स ऑफ द सर्कुलर स्केल दैट हैज क्रॉस द इंडेक्स लाइन विद द लीस्ट काउंट ऑफ स्क्रू गेज टू फाइंड द जीरो एरर। अब आपने इसमें करना क्या है कि मल्टीप्लाई करनी है डिविजन सर्कुलर स्केल की जो कि क्रॉस कर चुकी है इंडेक्स लाइन की, किस चीज से मल्टीप्लाई करनी है, तो आपने लीस्ट काउंट की जो है उससे मल्टीप्लाई करनी है। अब हमारे पास अगर पॉजिटिव भी नहीं है और नेगेटिव भी जीरो एरर नहीं है, तो दैट इज कंसिडर्ड एज नो जीरो एरर, and that is if the zero line of the circular scale coincides with the index line, then the zero error will be zero। मतलब अब ना वो ऊपर जा रही है ना वो नीचे की तरफ आ रही है, तो हमारी इक्वल है, ठीक है, जीरो आपके सर्कुलर स्केल से मीट कर रहा है, so it is considered as no zero error of the screw gauge। Going forward, अब अगर हमने कोई मेजरमेंट लेनी है स्क्रू गेज से तो वो हम किस तरह लेंगे, सपोज वी आर मेजरिंग अ वायर पीस, so let's have look upon the steps, note the pitch and the least count and determine the zero error if any। वो आपकी पिच जो है वो 1 मिलीमीटर भी हो सकती है और आपकी जो है वो 0.05 इस तरह भी हो सकती है, तो आपने पहले नोट कर लेनी है, वो आपके टोटल नंबर ऑफ डिविजन्स पे डिपेंड कर रहा होगा, या तो वो 100 होंगी या तो वो 50 होंगी। अगर आपको पता चल गया देन यू हैव टू फाइंड द जीरो एरर, और उसके बाद अगर है तो उसकी टाइप, और फिर आपने अपना नेक्स्ट स्टेप दैट इज प्लेस द ऑब्जेक्ट बिटवीन स्पिंडल एंड द स्टड एंड क्लोज द गैप बिटवीन देम बाय टर्निंग द रैचेट। अब आपने अपने ये स्टड और स्पिंडल के बिटवीन प्लेस करना है और फिर आपने रोटेट करना है रैचेट को, ठीक है, इस तरह आपका जो है वो ऑब्जेक्ट टाइट हो जाएगा, लॉक लग जाएगा बेसिकली उसको। देन टर्न ऑन द रैचेट अंटिल इट स्टार्ट्स टू क्लिक। जैसे आपने रैचेट को रोटेट किया तो उसमें बेसिकली एंड पे आवाज आती है टिक की, ठीक है, उससे ज्यादा आप रोटेट करो तो स्क्रू गेज आपका ज्यादा टर्न नहीं होता या वो और ज्यादा क्लोज नहीं हो रहा था। दैट इज द फाइनल इंडिकेशन कि आपको पता चल गया जी इससे ज्यादा रोटेट करोगे तो और कुछ नहीं होगा। देन रीड द मेन स्केल रीडिंग विच इज द रीडिंग शोन बाय द सर्कुलर स्केल। आपने मेन स्केल रीडिंग को पढ़ना है, ठीक है, दैट इज द बेसिकली रीडिंग शोन बाय द सर्कुलर स्केल एज वेल। Then identify the line of circular scale aligned with the bottom line। This is the circular scale, और ये जो आपके bottom line से बिल्कुल coincide कर रही होगी वो आपने रीडिंग लेनी है। Then multiply the least count of screw gauge by the reading obtained and that is the circular scale reading। फिर आपने अपनी जो रीडिंग आई है वो आपने मल्टीप्लाई कर देनी है लीस्ट काउंट। किसके लीस्ट काउंट से, रिमेंबर दैट स्क्रू गेज और वर्नियर कैलिपर के लीस्ट काउंट में डिफरेंस होता है, तो आपने स्क्रू गेज के लीस्ट काउंट से मल्टीप्लाई करनी है। देन ऐड लीनियर या फिर लीनियर वो मेन स्केल भी कहते हैं, और उसके बाद एंड सर्कुलर स्केल रीडिंग विच गिव्स द टोटल रीडिंग। आपने दोनों की रीडिंग्स लेके उनको ऐड कर देना एंड दैट वुड बी योर total reading. That was the end. Next we are going to discuss in our next video.